become direct selling. The direct seller itself is an answer to the direct selling, means he needs to sell. The first part is when a distributor sell to a non-member, very important. That is very, very important. Only then the retailing happens. And as the name speaks, distributor, you are being named not as a leader or nothing or a member, but you are being called as a distributor. So when you become a star agent, you become a super distributor. When you become a star ruby, you become very big distributor. When you become a star diamond or a star or a crown ambassador, you become a super distributor. So as per your status, your distribution should increase. The punch is you need to first use the product. Then when you start using the product, you start sharing. When you find the benefits of the product, you feel like telling the benefit of the product. You have the conviction. And when you have the conviction, you start sharing the product. And when you start sharing the product, because you have used it, you have felt it, you have known the benefit, and you start sharing the product. And when you start sharing the product, definitely you start building the big network. So that is, in short, it is again about using the product, sharing the product, and you building the big network. And as Mr. Rafiq says, it is 90% conviction and 10% only is the selling part. So for example, like when it comes to practical things of toothpaste and all, toothpaste can be used like what we say as a company, as a toothpaste, but that's what the company says. But people people use it to gargle. They use it as a mouth freshener. They use as an antiseptic, plenty of things. And that is only possible when you really use it. So conviction, that is very important. So thank you very much, Mr. Rafiq. And this will help this question. I would like to tell all my viewers, this is the reason why this retailing helps you to increase your personal PPV, because that is a major reason why people feel afraid, oh, I have to maintain my personal PPV. And if you have a good retailing people, a retailing base, a good number of consumers, your maintaining of PPV becomes very easy. Thank you very much, Mr. Rafiq, for that. Rahul, I think just for the English viewer, I just make a 3 points, important point, which Rafiq sir said. First, you have to become a good consumer and be the product of the product. And second, that is, you must have a consumer so that your PV will be maintained easily. Third point, important point, then build a network. So these are the things that Rafiq sir wanted to give in the given in the Hindi message. So Rahul, क्यों ना हम शुरुआत करें अपने second question की तरफ आगे बढ़ें? Because I want to now shoot one by one question fast. So Mr. Rafiq, your second question, are you ready? Yeah, ready. Mr. Rafiq, one question comes. They say, I hate selling and I don't like selling. What to do for this type of question? Mr. Vijay, translation. अक्सर जो प्रश्न बिल्कुल भूमिका से बंधा हुआ है, जो मेरे हिंदी व्यूअर्स हैं, अक्सर ये समस्याएं आपको भी फेस करनी पड़ती हैं और हमें भी फेस करनी पड़ती है जीवन में कि मुझे ना बेचने से नफरत है, मैं बेच नहीं सकता, और दूसरा कि मुझे पसंद ही नहीं है बेचना, मैं खरीद सकता हूं लेकिन बेच नहीं सकता। और तो इस तरीके के प्रश्न, इस तरीके की मैं कहूँगा सर ये गिल्ट है जो होता है, हिच होता है कि मैं इसे नहीं कर सकता। तो मैं ज्यादा डिटेल में जाते हुए प्रश्न को पर्सनली रहने देता हूँ, आंसर आपसे चाहते हैं इसका। इस कंडीशन में जब ऐसा प्रश्न फेस हो, खुद से भी हो रहा हो या दूसरे से आ रहा हो, तो हमें किस तरीके से इस चुनौती का, इस समस्या का सामना करना चाहिए? लोग ऐसा सोचते हैं ना, बेचना पाप है, ऐसा नहीं है। बेचना बहुत अच्छी काम है, बट पहले मैं भी यही सोचता था, प्रोडक्ट बेचना मैं कैसे बेच सकूं, बिकॉज लोगों के साथ बोलना, अगर वो ना बोल देंगे तो क्या होगा, तो मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा। ये भी मेरा सोच ऐसे ही था। जब जितने लोग आप सोच रहे हैं ना, ज्यादातर लोग मेरा सोच के साथ ही रहते थे पहले। तो फिर मुझे पता चला ये सेलिंग क्या है। फर्स्ट हमको अंडरस्टैंड करना है, ये समझना है ये सेलिंग क्या है। सेलिंग इज नथिंग बट इट्स एन एक्ट। ये एक छोटा सा काम है जहां पे आप प्रोडक्ट लेते हो और सर्विस देते हो और उसका पैसा आप वापस लेते हो। दैट्स ऑल। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड सेलिंग। ये जो सेलिंग का काम उतना मुश्किल काम नहीं है। से फॉर एग्जांपल आपने रिटेल शॉप में खोल दिया, आपने एक दुकान खोला, अब प्रोडक्ट आपने सजा के रख दिया, लोग आपके पास आ रहे हैं, चावल ले रहे हैं, तरकारी ले रहे हैं, जा रहे हैं, ये हो गया सेलिंग।
सिर्फ लोगों ने आया, पैसा दिया और प्रोडक्ट लेके चला गया। ये सेलिंग में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए और नहीं है। बट ये सेलिंग होने के लिए इसका पीछे और एक चीज होता है, दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग। जो मार्केटिंग ही वो कंज्यूमर को एक डिसीजन लेने में मदद करता है। तूने वो दुकान को जाना चाहिए, वहां से ये प्रोडक्ट लेकर आना चाहिए, ये होता है मार्केटिंग। ये मार्केटिंग कौन करता है? एडवर्टाइजमेंट इसका काम करता है। एडवर्टाइजमेंट वो मार्केटिंग का काम करता है। जब आप बाहर बिलबोर्ड्स देखते हो और पोस्टर्स देखते हो, ये सब मार्केटिंग का काम करता है। सो टू मेक द सेलिंग ये मार्केटिंग का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड ये मार्केटिंग ये आपको सेल से कन्वर्ट करके देता है। ये मार्केटिंग ये आपको इन्फ्लुएंस करता है आपको डिसीजन लेने में एक प्रोडक्ट को खरीदने से। और द बेस्ट पर्सन, अगर आप देखेंगे, अगर कोई बेस्ट पर्सन है दुनिया में जो मुझे इन्फ्लुएंस कर सकता है ये प्रोडक्ट लेने के लिए, वो टीवी नहीं है। बिकॉज टीवी में कौन है कौन नहीं है मुझे पता नहीं। अगर मेरा करीबी दोस्त मुझे कोई चीज रिकमेंड करेगा ना, मैं उसका बात ज्यादा मान सकता हूं जो टीवी का बात से। अगर मेरा बहन और मेरा भाई जब एक प्रोडक्ट के बारे में मुझे बोलता है, बेनिफिट के बारे में मुझे बोलता है, उससे मैं ज्यादा भरोसा करूंगा और बिकॉज कंपेयरिंग टू टीवी और द एडवर्टाइजमेंट। सो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है पता है? सो इट इज नॉट ऑन द मार्केटिंग करना किसी के लिए भी मुश्किल का काम नहीं है, ये अच्छा से समझ लेना। मार्केटिंग का काम कभी भी मुश्किल का काम नहीं है। ये मार्केटिंग का काम हम हर दिन करते हैं, कभी जानकर करते हैं, कभी अनजाने में कर जाते हैं, बट मार्केटिंग हम हर वक्त करते हैं। जब ये प्रॉब्लम तब होगा जब ये मार्केटिंग का साथ हम कुछ इमोशन रखेंगे, तब वो प्रॉब्लम बन जाता है। से फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल देता हूं। आपने एक होटल में जाया, होटल में खाना खाया, होटल में खाना खाने के बाद आपको दोस्त बोलते हैं ए वहां पे जाना, यू विल गेट ए फैंटास्टिक खाना आपको वहां पे मिलता है और प्राइस भी अच्छा है। जब ये इंफॉर्मेशन आप शेयर करते हो ना पूरा एक्साइटमेंट का साथ, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मार्केटिंग हो जाता है। और आपका दोस्त वो रेस्टोरेंट में जाके खाता है, वहां पे सिर्फ सेलिंग हो जाता है, बट उसका मार्केटिंग किसने किया? मैंने किया। जब मार्केटिंग कर रहा हूं ना, यहाँ पे मेन एडवांटेज है, इसका साथ में कोई इमोशन नहीं रखता हूं। क्या इमोशन? अच्छा, मैं बोलने के बाद ये बंदा जाके वहां से खाएगा, वहां खाने में ये अच्छा लगेगा, वो खाता है नहीं खाता है मुझे कोई परवाह नहीं है। सो इसका साथ में कोई इमोशन नहीं रखता हूं। तो इसीलिए मैं हर दिन ये मार्केटिंग करता ही रहता हूं। मार्केटिंग ये जो इंफॉर्मेशन मैं देता हूं उसका साथ में कोई इमोशन नहीं रखता हूं। जब डीएक्सन प्रोडक्ट के बारे में हम आ जाता है, तो ये हम पे क्या करते हैं, हम मार्केटिंग तो करते हैं, इसका साथ साथ इमोशन भी रखते हैं। हम बोलते हैं ये टूथपेस्ट अच्छा है, तो हम पीछे हमारा माइंड में ये भी हमारा एक एक्सपेक्टेशन हो जाता है, अच्छा मैं अच्छे बोलने में ये बंदा मेरे से प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, अगर खरीदेगा तो मुझे खुशी होगा, अगर नहीं खरीदेगा तो मुझे अफसोस हो जाऊंगा। तो ये जो इमोशन जब ऐड कर लेते हैं ना, वो प्रॉब्लम है। सो आपको मार्केटिंग अच्छा लगना चाहिए। तो इजी फैक्टर एक ही फैक्टर है, जब आप शेयर करते हो, व्हेन यू आर शेयरिंग द इंफॉर्मेशन, डोंट ऐड इमोशन उसका अंदर मत लेकर आना। आपका काम सिर्फ एक ही काम है, जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन को अच्छे एक्साइटमेंट का साथ लोगों तक पहुंचाना। वो क्या डिसीजन लेगा क्या डिसीजन नहीं लेगा शुड नॉट अफेक्ट यू। अगर ये अफेक्ट हो जाता है, यू आर पुटिंग इमोशन इनटू योर बिजनेस। सो डोंट पुट दैट इमोशन को वहां पे रखना नहीं चाहिए। अगर ये इमोशन को आप हटा देंगे, मार्केटिंग आराम हो जाएगा। यू विल लव डू मार्केटिंग। जब पहले मुझे भी ऐसे ही था, मैं जब प्रोडक्ट बेचता हूं मुझे सोच था, अच्छा मैं कैसे भी कन्विंस कर दूंगा ये प्रोडक्ट मेरे से ले लेगा। जब वो ले लेता है मुझे खुशी होगा, जब वो नहीं लेता है मैं गम हो जाता हूं, बिकॉज मैंने इमोशन को ये प्रोडक्ट का साथ रख दिया, मार्केटिंग का साथ रख दिया। जब ये इमोशन को मार्केटिंग से निकाल दिया, दोनों में बिंदास बोलने लगा। कुछ लोग मेरे से प्रोडक्ट खरीदने लगे, कुछ लोग मेरे से प्रोडक्ट नहीं खरीदे। ये मुझे अफेक्ट नहीं किया, क्योंकि मैंने इमोशन को मेरा मार्केटिंग से हटकर रख दिया। सो इफ यू वांट टू एंजॉय सेलिंग, इफ यू वांट टू एंजॉय मार्केटिंग, you share DXN product, but don't keep emotion, don't keep expectation. It will automatically come, result आता ही रहेगा।
एक बार नहीं आता है, 2 बार नहीं था, बिकॉज शुरुआत में जब हम बोलते हैं ना, कैसा बोलना है ये भी मुझे समझ में नहीं है। एक बार 2 बार बोलूंगा, वो बंदा को डिसीजन नहीं ले पाता है, बिकॉज मैं उसी सही तरह से इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता हूं। एक 10 बार 20 बार मैं बोल दूंगा ना, तो मुझे समझ में आ जाएगा कैसा बोलने का तरीका। जब ये तरीका मुझे समझ में आता है, तो 30वां बार 40वां बार मैं बोलने लगता हूं, तो हर एक बंदा मुझे प्रोडक्ट लेने में सक्षम होता है। बट लोग क्या करते हैं, 10 बार 15 बार बोल के छोड़ देते हैं, ये रे मेरे से नहीं होगा, मैं सेलिंग पसंद नहीं करता हूं, सेल्स मुझे पसंद नहीं है, सेल्स मुझे आता नहीं। ऐसी बात नहीं है। प्रॉब्लम ये है, हम इमोशन को रख देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखो, आपने एक डॉक्टर के पास गया, वो डॉक्टर ने आपका बच्ची को अच्छा ट्रीटमेंट दिया, जो बुखार था चला गया, आप आके बाहर बोलते हो वो डॉक्टर अच्छा है, वो बंदा वो डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, दूसरा डॉक्टर के पास चला जाएगा, तो आप क्या गम हो जाएंगे, सैड हो जाएंगे? नहीं है ना, बिकॉज आपने इमोशन नहीं रखा है। तो ऐसे ही करना चाहिए डीएक्शन में। आपका काम है प्रोडक्ट को यूज करो और अच्छी तरह से शेयर करो, पूरा एग्जैक्ट का मन शेयर करो और डिसीजन उसे लेने दो। आपका डिसीजन उसका ऊपर आप तोपो मत। आपका एक ही काम है, आपका एक्सपीरियंस को शेयर करना, आपका एक्सपीरियंस को बोलते ही रहना, दैट्स ऑल। और इमोशन को अलग रखेंगे। ये जो एक्सपीरियंस इंफॉर्मेशन आप देते ही रहेंगे, ये मार्केटिंग सेलिंग में कन्वर्ट होता ही रहेगा। दैट वन यू बिंदास रहिए। ओनली व्हाट यू डू इज यू जस्ट शेयर एंड कीप द इमोशन अवे, यू विल लव सेलिंग। बहुत खूब। Great, Mr. Rafiq, great. You make a decision. Like for example, when you want to choose a good hotel, you may say to your best friend, and your best friend, when you tell to your best friend, you are doing a marketing, and when he goes and eats food from the hotel, that becomes a selling. Now, ultimately, what you need to do is you need to keep away the emotions from this selling. What you have to do is you have to give information. You have to give your suggestions. You have to give your experience sharing. So here, your experience sharing, your information is the marketing. Selling happens by itself. That is why we say, when you use and when you feel the experience, when you share, that itself becomes a marketing, and the selling happens automatically. Very beautifully said, Mr. Rafiq. Very beautifully said. Thank you very much for the beautiful answer. We can go to the third question, I believe, Mr. Rafiq. Can we go to the third question? राहुल, बिल्कुल। और मैं थोड़ा सा एक हाईलाइट डालना चाहूंगा रफीक सर की बात में कि जब भी आप कोई चीज बेचने के लिए जा रहे हैं, तो ये मत सोचिए कि यार ये ले ही लेगा। खाली हमें क्या करना है कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग करनी है। जब सामने वाले को पता चलेगा कि आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, तो अपने आप लेगा वो। जब सामने वाले को पता चल गया कि अगर वो आप बेचने के लिए आए हो, तो 100 क्वेश्चन आपसे करेगा, वहीं फेलियर स्टार्ट होता है। तो इमोशंस को कंट्रोल रखिए। Sorry to interrupt. In this information with good excitement, what Mr. Rafiq said, wow. Yes. Information with good excitement is very important. मैंने यूज किया, मुझे ये फायदा हुआ, मैं इस तरीके से इस्तेमाल कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया, बस दैट्स इट। Yes. आपका काम हो जाएगा। The excitement is also very, very, very important. So, Mr. Rafiq, we go to the third question. Yes. So the third question is, normally we have a question, how to learn selling? क्योंकि मुझे आता नहीं है, how to learn selling. Yes, Vijay. बिल्कुल, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। मेरे को लगता है रफीक सर ने इसका जवाब पहले से ही देना शुरू कर दिया है। तो एक प्रश्न जो है, जो मेरे को राहुल ने इंग्लिश में पूछा है कि बेचना कैसे सीखें, या कैसे बेचना चाहिए। तो इसके कई मायने निकल सकते हैं। तो आज हम जानना चाहेंगे रफीक सर के माध्यम से कि वो किस तरीके से इस बात को, इस समस्या को, इसका समाधान देते हैं। सेलिंग, हाउ टू लर्न सेलिंग। मैंने पहले आपको बोला था, सेलिंग इज ए रिजल्ट। अब अच्छा से समझना, सेल्स है, सेलिंग इज ए रिजल्ट। ये किसका रिजल्ट है? पहले आपने एक काम किया, दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग। कन्विंस किया, किसी को आपने कन्विंस किया, देन वो सेल से कन्वर्ट हुआ। सो दो चीजें रहता है मार्केटिंग को, और हम बोलते हैं कन्विंसिंग। आपने किसी को कन्विंस किया, बिकॉज ऑफ दैट कन्विंसिंग ये सेलिंग हुआ। जब ये कन्विंसिंग नहीं होता है, ये सेलिंग नहीं हो सकता है। तो ये कन्विंसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो कन्विंसिंग का काम है ना, ये एक इंसान का पैदाइश गुण है। जब आप छोटे छोटे, मैं बच्चा था, जब मैं छोटा था, तब से ही ये अंदर था मेरा। ये जो कन्विंसिंग करना,
जब मैं छोटा था, जब ठीक तरह से बात भी नहीं करता था, जब मुझे कुछ चाहिए, मैंने एक टूल यूज किया मेरे माँ बाप को कन्विंस करने के लिए, वो रोना। जब मैं ज्यादा रोता हूं, मेरा माँ बाप वो बात मान लेते हैं। मैंने वहां से कन्विंसिंग करना शुरू किया। दैट मीन्स आप देखिए, मैंने सेलिंग वहां से शुरू कर लिया, वहां से मैंने कन्विंस किया। जब कन्विंस करके मुझे जो चाहिए वो रिजल्ट मैंने हासिल कर लिया। सेकेंड जो चीज है, मैं जब बड़ा हुआ था, जब बड़ा हुआ था, मुझे एक बाइक चाहिए, मुझे एक साइकिल चाहिए, मैं उनको अच्छी तरह से प्यार से समझाने लगा, तो मुझे वो चीज मिलने लगा। जब मैं और बड़ा हुआ था, जब राहुल कॉलेज में गया, तो राहुल को प्यार हो गया। तो प्यार को कैसे तो राहुल अभी क्या करेगा, जाके बोल देगा आई लव यू बोलने में कुछ नहीं होने वाला है। तो राहुल को क्या करना है, पहले प्रिपेयर करना चाहिए। वो चाहता है खुद को बेचने के लिए एक लड़की का साथ, सो दैट उसका साथ शादी हो जाए। तो राहुल ने क्या करेगा, पहले वो मार्केटिंग करेगा। क्या मार्केटिंग करेगा, मैं तेरे लिए अच्छा क्यों हूं, उसे मनाने की और उसे खुशी करने की। ये जो पहले जो मार्केटिंग करेगा, देन ओनली वो प्रपोजल देगा। जब मार्केटिंग नहीं करेगा तो प्रपोजल नहीं दे सकता है। तो पहले वो मार्केटिंग करता है, देन ओनली ही गिव द प्रपोजल। जब आप जॉब इंटरव्यू में जाते हो, आप क्या करते हो, यू आर सेलिंग योरसेल्फ, आपका टैलेंट को आप बेचते हो। सो मैं कहने का मतलब ये है, ये जो है वी मार्केट आवरसेल्फ एंड वी सेल आवरसेल्फ एवरी डे। ये जो हर एक बंदा का एक पैदाइश गुनर है, जो एक बात को मनाना, दूसरों को एक बात को मनाने का एक जो ताकत है, एक जो कला है, ये सबका अंदर है। ये कला को हम यूज करना चाहिए ये DXN बिजनेस में, तो हम ज्यादातर कंज्यूमर को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो इफ यू कैन सी, इफ यू कैन केयरफुली सी, यू डू सम प्रिपरेशन। हमने कुछ प्रिपरेशन करके ही हमने ये प्रोडक्ट को या प्रपोजल को दिया है, सही है ना। जब छोटे में कुछ हासिल करना है, मैंने प्रिपरेशन किया। क्या प्रिपरेशन किया, रोना धोना किया, वो मेरा प्रिपरेशन था। जब मैं एक लड़की को प्रपोज कर रहा हूं, उसे फूल देके उसे मनाना, वो प्रिपरेशन था। जब मैं जॉब के लिए जा रहा हूं, मैं इंटरव्यू को मेरा बायोडाटा सब कुछ सबमिट करता हूं, वो मेरा प्रिपरेशन था। सो प्रिपरेशन इज द की फैक्टर। अगर आपको अच्छा सेल करना चाहिए, आपको खुद को प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है। इवन आप एक साबुन यूज बेचना चाहते हो, या RGGL बेचना चाहते हो, या टूथपेस्ट बेचना चाहते हो, जो भी प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हो, खुद को प्रिपेयर करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर ये करना है, जब ये प्रोडक्ट आप बोलेंगे, वो क्या क्या ऑब्जेक्शन दे सकता है, और ऑब्जेक्शन का आप क्या आपका पास क्या क्या आंसर है, ये आंसर आपको रेडी रखना चाहिए, सही है ना। सो दिस इज व्हाट वी कॉल द प्रिपरेशन। ये प्रिपरेशन, और वो जो सामने वाला बंदा है ना, उसे ये प्रोडक्ट जरूरत है, उसे मैं कैसे समझाऊंगा, वो प्रिपरेशन है। बिकॉज जो प्रोडक्ट हमारा पास है, ये एक सोल्यूशन है। जब उसे प्रॉब्लम पता नहीं चलेगा, ये सोल्यूशन नहीं लेगा। पहले उसे क्या प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम को उसे समझाना बहुत जरूरी है। दिस इज कॉल्ड प्रिपरेशन। देन ये सोल्यूशन को देना, दिस इज कॉल्ड सेलिंग। वो प्रिपरेशन करना, वो मार्केटिंग है। वो प्रिपरेशन करना इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू डू दिस वन। जब आप जाते हो, नॉर्मल ऑब्जेक्शन क्या आता है नेटवर्क मार्केटिंग में, सब प्रोडक्ट कॉस्टली है। ये बहुत नॉर्मल ऑब्जेक्शन है। जो भी प्रोडक्ट का साथ चले जाओ, लोग टेल इट इज वेरी कॉस्टली। प्राइसिंग का ऊपर एक ऑब्जेक्शन आ जाता है। सो नाउ यू शुड नो हाउ टू हैंडल दिस ऑब्जेक्शन व्हेन यू डू द रिटेलिंग। ये ऑब्जेक्शन का हैंडल नहीं करेंगे तो आपका रिटेलिंग और आपका सेलिंग सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। तो when people tell ये प्रोडक्ट कॉस्टली है, then I ask them comparing what। ये जो आप कॉस्टली बोल रहे हो ना, comparing what ये कॉस्टली आप बोल रहे हो। लोग बोलते हैं ज्ञानोडर्मा कॉस्टली है। सो ज्ञानोडर्मा कॉस्टली है, comparing what? You compare with एप्पल, और एप्पल है ज्ञानोडर्मा सेम नहीं है। ज्ञानोडर्मा है 400 एक्टिव न्यूट्रिएंट है, तो एप्पल में है। ज्ञानोडर्मा इज एन अडाप्टोजन, एप्पल में है। ज्ञानोडर्मा विल गिव यू एन एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटीबैक्टीरियल, लॉट ऑफ थिंग ज्ञानोडर्मा में है, तो आपका एप्पल में नहीं है। तो यू कैन नॉट कंपेयर गोल्ड विथ ब्रिक, इफ यू वांट टू कंपेयर गोल्ड विथ गोल्ड। सो अगर ज्ञानोडर्मा को कंपेयर करना है, तो सेम ज्ञानोडर्मा एक चीज उससे कंपेयर करो, देन ओनली आपको इसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा, सही है ना। अगर नहीं करेंगे तो दुनिया में लॉट ऑफ प्रोडक्ट रहता है। कुछ बोलते हैं सर ज्ञानोडर्मा कम में भी मिलता है, स्पाइरुलिना कम दाम में भी मिलता है, चाय कम दाम में भी मिलता है, तो आपका दाम तो बहुत ज्यादा है। यू सी, अभी दुनिया में सबका पास मोबाइल फोन है या नहीं? एवरीबडी हैव मोबाइल फोन, करेक्ट ना। मोबाइल फोन 4000 में भी मिलता है, जो आईफोन है 1,50,000 में भी मिलता है।
बट दुनिया में ज्यादा सेल होना फोन आईफोन है। ये सस्ता फोन सेल नहीं होता है, ये कॉस्टली फोन, ये दुनिया में ज्यादा सेल होने का फोन ये कॉस्टली फोन है, बिकॉज लोगों को पता है इसका क्वालिटी और ये यूज करने में उनको मिलने का जो बेनिफिट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वो बेनिफिट, वो क्वालिटी हमारा DXN का प्रोडक्ट का पास है, और दिस इज परफेक्टली एक प्राइस्ड प्रोडक्ट है हमारा जो DXN का ये जो प्रोडक्ट। सो दिस इज व्हाई इट इज आवर, जब भी ये प्रोडक्ट एक ब्रांड का साथ ऐड हो जाता है उसका वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर और बिकॉज ऑफ द सिस्टम। इसी इंडिया में एक कार है, वो कार है मारुति बलेनो, आप लोग जानते हो, एक कार है मारुति बलेनो और एक कार है टोयोटा ग्लांजा। अगर ये दो कार को आप कंपेयर करेंगे, ज्यादा बिकने वाला कार टोयोटा ग्लांजा है, ओके। बट हकीकत में ये मारुति और ये टोयोटा ग्लांजा का जो कार है सेम कार है, उसका बिल्टअप, उसका इंजन, उसका डिजाइन, एवरीथिंग इज 100% सेम, बट नाम इज डिफरेंट। एक मारुति का नाम दिया और एक टोयोटा का नाम दिया, बट कार इज सेम। मारुति का काम कितने में बेचता है? वो 6 लाख में बेचता है, और टोयोटा ग्लांजा वो 7.5 लाख में बेचता है। 1.5 लाख सिर्फ बढ़िया बिकॉज ऑफ द ब्रांड, बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, सही है ना। सो दिस आर ऑल ऑब्जेक्शन हाउ यू कैन हैंडल। ये जो ब्रांड के साथ मिल जाता है, जब क्वालिटी मजबूत हो जाता है, देन यू कैन सी। नॉर्मली आप दुकान में जाएंगे, एक शू आपको 500 रुपए में भी मिल जाता है। अगर ब्रांड में चले जाओ, वो शू आपको 5,000 में भी मिलता है। बट फर्क यह है, अगर 5,000 का शू आप एक बार ले लिया, 5 साल वो चलेगा, बट 500 का शू आप एक बार ले लिया, 3 महीने का बाद नहीं चलेगा, सही है ना। तो आप कंपेयर करके देखेंगे, हर 3 महीना नया शू ले आना है तो एक ही बार अच्छा शू लेना है, तो एक ही बार अच्छा टूथपेस्ट लेना है। बिकॉज नॉर्मल टूथपेस्ट मैंने यूज कर दिया, टूथपेस्ट तो यूज कर दिया, बट मेरा दांतों का इसका प्रॉब्लम नहीं जाएगा। डॉक्टर का पास मुझे पैसा देना चाहिए, बट वो डॉक्टर का पैसा मुझे बचाना चाहता हूं, एक अच्छा टूथपेस्ट ले लेना, जो ज्ञानोजी टूथपेस्ट ले लेना, तो ये डॉक्टर का खर्चा भी ये टूथपेस्ट देख लेगा, सही है ना। आप देखिए दुनिया में, आप यू गो टू एनी शॉप, एक समोसा आज 10 रुपए 12 रुपए में मिलता है, सही है ना। यू गो टू द शॉप, 10 रुपए 12 रुपए में एक समोसा मिलता है, बट आपका स्पाइरुलिना कितना में मिलता है? ये देखो, ये कैप्सूल स्पाइरुलिना कितना में मिलता है? स्पाइरुलिना ये बोला जाता है 3 स्पाइरुलिना ले लेंगे तो 1 किलो वेजिटेबल आपने खा लिया, तो समझो 1 किलो वेजिटेबल का दाम कितना है, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक वेजिटेबल का दाम कितना है, और 3 स्पाइरुलिना का दाम कितना है। तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा प्रोडक्ट कौन सा कॉस्टली है, कौन सा चीपर है। तो अगर क्वालिटी के बारे में बात करेंगे, ब्रांड के बारे में हम बात करेंगे, तो DXN का प्रोडक्ट बहुत वन ऑफ द चीपेस्ट प्रोडक्ट और इकोनॉमिकली प्राइस्ड प्रोडक्ट हम बोल सकते हैं। सो अगर आपको सेल करना है, सो मेन थिंग इज, इफ यू वांट टू लर्न सेलिंग एंड इफ यू वांट टू डू सेलिंग, द ओनली थिंग इज, ये हमारा एक पैदाइश गुनर है ये सेल करना, ओके। सो व्हाट यू डू इज, यू हैव टू शेयर द बेनिफिट एंड रेकमेंड देम एज पर देयर नीड। डोंट पुश। 2 चीज होता है, एक है पुश मार्केटिंग और एक चीज होता है पुल मार्केटिंग। पुश मार्केटिंग माने भाई ये प्रोडक्ट ले लेना, तो आप जाएंगे दुकान में या रोड साइड में जाएंगे, लोग आपको बुलाएंगे, मेरे से ले लो, मेरे से ले लो, मेरे से ले लो, ये पुश मार्केटिंग है। पुल मार्केटिंग क्या होता है? जब मैंने कॉफी यूज किया और ये टेस्ट करने के बाद मैंने फ्रेंड से शेयर किया, मैंने एक कॉफी यूज किया, जबरदस्त था, मॉर्निंग एवरीडे आई एम यूजिंग दिस कॉफी। आपने उसे ये नहीं बोला तू प्रोडक्ट खरीद ले, सिर्फ आपने शेयरिंग उसका साथ एक्सपीरियंस करना शुरू किए थे, तो वो इंफॉर्मेशन, आपका जो बेनिफिट, आपका जो एक्साइटमेंट है, उसे पुल करेगा ये प्रोडक्ट की तरफ। इसे हम बोलते हैं पुल मार्केटिंग। आप लोगों को पुल करना चाहिए ये प्रोडक्ट की बेनिफिट। ये पुल कैसे करेंगे? आपको जो व्हाट्सएप का जो स्टेटस है, वहां पे आप प्रोडक्ट के बारे में अच्छे एक्सपीरियंस डालना शुरू करो। ये मत बोलो लोगों को लेने के लिए, आपका काम है एक्सपीरियंस को जाहिर करना, लोगों को बताना पूरा एक्साइटमेंट का साथ, देन ये हो जाएगा पुल मार्केटिंग। जब ये पुल मार्केटिंग हो जाएगा, यू कैन डू वंडरफुल बिजनेस। ऑलवेज रिमेंबर, ये जो मार्केटिंग में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम बात करते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अच्छा कम्युनिकेशन ये है 90% हम लोगों को प्रिपेयर करना चाहिए मेरा पॉइंट को एक्सेप्ट करने के लिए। मेरा पास एक अच्छा पॉइंट है,
मैं डायरेक्टली वो पॉइंट बोल दूंगा ना, उसका माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिकॉज अभी वो माइंड एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। तो मेरा पहला काम ये होना चाहिए, उसका माइंड को प्रिपेयर करना। 90% काम है माइंड को प्रिपेयर करना, और 10% काम है मेरा आइडिया को देना, मेरा प्रोडक्ट के बारे में बोलना। ये 90% काम आपने अच्छी तरह से कर दिया तो आपका प्रोडक्ट आराम से बिक जाएगा। सो वी ऑलवेज टेल, दिस इज हाउ यू, जो जमीन है ना, जो आप खेतों करते हैं उनसे पूछिए, एक अच्छा जमीन में आप एक दुर्बल बीज भी फेंक देंगे भी ना, वहां से आप घास उठकर बाहर आ जाएगा, बिकॉज जमीन प्रिपेयर्ड था। बट जमीन प्रिपेयर्ड नहीं है, अच्छा भी बीज डालेंगे उसमें से आपको घास नहीं आएगा, बिकॉज जमीन प्रिपेयर्ड नहीं है। तो इसीलिए जब भी आप लोगों से प्रोडक्ट के बारे में बात करना चाहते हो, उनका माइंड को प्रिपेयर करो। पहले उनको ये समझाने की कोशिश करो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है न्यूट्रिशन ना होने में, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है एक अच्छा टूथपेस्ट ना यूज करने में, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है जब आप फिनेंशियल फ्रीडम के लिए एक सिस्टम नहीं रखने में। ये प्रिपरेशन ऑफ द माइंड है। जब ये माइंड, जब एक डर अंदर पैदा हो जाएगा, देन आप वो सोल्यूशन दे सकते हो आराम से, यू कैन कन्वर्ट योर सेल्स। इसी तरह सेल करना बहुत इजी है, एक पैदाइश गुणन है सबके लिए। सो डरो मत, नो नीड टू वरी, खुल के DXN प्रोडक्ट का जो बेनिफिट है उसे सबका सामने बोलना और एक्साइटमेंट का साथ बोलना शुरू करो, और इमोशन को अलग रखो। इमोशन को मत लेके आओ अंदर, ये लेगा नहीं लेगा, ये हाँ बोलेगा ना बोलेगा, ये आपका काम नहीं है। आपका काम है सिर्फ आपने जो शेयर किया, आपने जो बेनिफिट को जो आजमाया, उसे आप बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। जितना आप ज्यादा बोल सकते हो उतना ज्यादा बोलते रहो। जहां जहां मौका मिलता है वहां वहां सही तरह से बोलने की कोशिश करो, देन यू विल गेट अ मच बेटर सेल्स। बहुत खूब सर, बहुत खूब। जहाँ तक कि हिंदी दर्शकों का सवाल है, हमें समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार बेचना है, और बेचने के लिए बेसिकली किन बातों का ध्यान रखना है। सेलिंग अपने आप ऑटोनोमस मोड में हो जाएगी, आपको उसके लिए ज्यादा एफर्ट लगाना नहीं पड़ेगा, आपको पुश नहीं करना पड़ेगा, उसे ऑटोमेटिकली पुल होगी आप जब बेनिफिट्स को शेयर करेंगे। राहुल, हमारे इंग्लिश दर्शकों के लिए प्लीज जो सफिक सर ने बोला उसे now I would like again summarize maybe in another 30 seconds to 1 minute, because I don't want to waste. Now selling is a result and marketing is a conversion. This is we have Mr. Rafiq has been telling now in the previous answer, questions are here also. Now one thing, what beautiful example which I can quote from Mr. Rafiq is about a baby. Right from your birth you are doing selling, you are doing marketing. That is, the crying baby will gets the milk. You have also heard this part, that the crying baby gets the milk, and the baby knows very well that when he cries or she cries, he or she is definitely getting the milk. So the same thing, when you grow up, I find the example of again the person, he becomes a boy, he becomes a man, he starts crying, he starts telling marketing that he wants a bike, he wants a bike. Then he gets a bike. Later, when he comes into contact with a girl, when he wants to propose somebody, when he falls in love, he's again doing the marketing. He's again convincing the girl about what is good in him, how well he's going to take care of the girl. So ultimately, the skill is already there in you. You are doing this, you are doing marketing, you are doing skill. So one thing to remember is preparation is the key. In all this process, you see, preparing is very, very important. Whether take the example of any of our product, whether it's toothpaste or soap or RG, GL, anything, any of these products, water products of DXN or any of the products, you need to understand what is going to be the objection and what is going to be the answer for that. That means you should have the answer, the solution for each and every objection. That is very, very important. So people may say that products are costly, but you should be able to handle about why it is costly. What example you be taking? That is very, very important. You should be asking them the question when they say costly to what? Mr. Rafiq has also told in English the same thing. I know many of my viewers have already understood because he has also told in English. When you compare, you should be comparing with the right product. They cannot compare and Ganoderma with an apple. You cannot expect them to do so. So
it should be compared with the right product, whether it is whether it is Ganoderma, whether if you take an example of a car, Mr. Rafiq was saying, if we're talking about Baleno and Glanza of Toyota, both has got more or less same features, but the brand, the quality matters. So information in all this, information is very, very important. You take the price, you take for example, any of the products of DXL, whether it is Spirulina or any product. Now, if you take about the cost part of Spirulina is so economic, but you should be able to place it properly. That is very important. 3 Spirulina will be maybe equal to a samosa, and that is how you can place it very well. So in all this, communication is very, very important. So 90% is preparation, 10% is selling the product. Like take the example of a field, the crop, it is all the same. First, you need to prepare the field, the soil well. Once you prepare the soil well, you put anything, it grows. You put anything in the soil, if the soil is well prepared, it grows to a very good plant. So thank you very much. Keep your emotions away. That was the punch again in that answer. Thank you very much, Mr. Rafiq, for that beautiful practical answer. So we go ahead with the next question. राहुल, प्रश्न भी बढ़िया था और जवाब तो बहुत ही खूबसूरत था और सीखने लायक भी था. बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही हैं. क्यों ना हम बढ़े अपने अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि अभी तो बात होगी सेलिंग की. सेलिंग कैसे करना है, क्या करना है, और अब कुछ एग्जांपल रफीक सर ने दिए. मुझे लगता है वो एग्जांपल ना पूरे नहीं थे, कुछ और रफीक सर से हमें पूछना चाहिए. तो क्यों ना हम प्रश्न के माध्यम से रफीक सर से कुछ और जानने का प्रयास करते हैं. So here goes our fourth question. Everybody wants to know how to do retailing, how to do it. So Mr. Rafiq, can you please give us some tips to retail the product more? रफीक सर, हम जानना चाहते हैं कि आपने सेलिंग के बारे में जैसे बताया कि किस तरीके से सेलिंग के लिए प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से प्रेजेंट करना है, हमारे अंदर गुण छुपा हुआ है. अब कुछ तो टिप्स आपने दिए. ऑफ कोर्स लड़की वाला टिप्स तो नहीं चलेगा सर, प्रोडक्ट लेके जाएंगे हम तो, क्योंकि उसके अंदर तो मार पड़ने के चांसेस पूरे हैं. तो सर कुछ ऐसा सुझाव दीजिए जिससे कि रिटेलिंग करने में जो डे टू डे बेसिस पे जो समस्याएं आती हैं उससे कैसे पार पाया जा सकता है. तो आप हमें रिटेल करने के कुछ सुझाव दीजिए जिससे कि हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो देख रहे हैं, वो भी उसको अपना सकें. ये रिटेल मार्केटिंग में मैं पहले बोला हूं, 2 चीज आप याद रखो. एक है पुश मार्केटिंग और एक है पुल मार्केटिंग. 2 चीज याद रखना. एक है पुश मार्केटिंग और एक चीज है पुल मार्केटिंग. पुश मार्केटिंग कौन करता है? पुश मार्केटिंग आप दुकान में चले जाओ, वो पुश मार्केटिंग. आप गाड़ी में जाते हो तो लोग आपका सिग्नल में कुछ लेके के बेचता है, सर ये खरीद लो, ये खरीद लो, ये खरीद लो. वो पुश करता है, उसका प्रोडक्ट हमारा अंदर पुश करता है वो खरीदने के लिए. वो प्रोडक्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, सिर्फ वो पुश करता है. आप रोड साइड चले जाओ और रोड साइड में जो दुकान वाले हैं वो आपको पुश करते हैं प्रोडक्ट लेने के लिए. दिस इज कॉल्ड द पुश मार्केटिंग. और एक चीज है पुल मार्केटिंग. पुल मार्केटिंग कब होगा? ये नेटवर्क मार्केटिंग में 100% काम करता है पुल मार्केटिंग. पुश मार्केटिंग यहाँ पे काम नहीं करेगा. आप जाके ऐसे ही किसी से बोलते सर मेरा टूथपेस्ट ले लो, मेरा साबुन ले लो, मेरा कॉफी ले लो, कोई नहीं खरीदने वाला है. पुश मार्केटिंग विल नॉट वर्क हियर. क्या मार्केटिंग यहाँ पे काम करेगा? वो है पुल मार्केटिंग. द बेस्ट वे ऑफ द मार्केटिंग इज यू शुड नॉट टेल पीपल अबाउट योर प्रोडक्ट एंड पीपल शुड आस्क अबाउट योर प्रोडक्ट. ये टेक्निक याद रखना. यू शुड नॉट टेल पीपल अबाउट योर प्रोडक्ट, पीपल शुड आस्क अबाउट योर प्रोडक्ट. आप लोगों को प्रोडक्ट को बताने नहीं जाओगे, लोग आपसे प्रोडक्ट के बारे में पूछेगा. ये होगा पुल मार्केटिंग. ये कैसे करना? सर कौन आके पूछेगा मुझे? कौन आके पूछेगा मेरे प्रोडक्ट के बारे में? नाउ पीपल कंफ्यूज्ड. सर ये कैसा हो सकता है? ये कैसा हो सकता है लोग मेरे से आके पूछेंगे ये प्रोडक्ट क्या है? ये हो सकता है जब आप ये प्रोडक्ट खुला यूज करना शुरू करेंगे. ये गुप्तगु में यूज करना नहीं है. ये प्रोडक्ट सीक्रेटली यूज करने का प्रोडक्ट नहीं है. ये प्रोडक्ट आपको ओपनली यूज करने वाला प्रोडक्ट है. आप सिर्फ प्रोडक्ट यूज करेंगे, आप देखेंगे इट विल पुल पीपल. से फॉर एग्जांपल मैंने एक क्राउन एम्बेसडर को सुना, लाज़लो कॉक्सो को सुना. उन्होंने क्या बोला? जब मेरा घर में मेहमान आते हैं, मैं सब लोगों को नॉर्मल कॉफी देता हूं और मैं गर्म पानी रखकर मेरा डीएक्सन को कॉफी ओपन करके डाल के भी पीता हूं. सिर्फ मैं ये करता हूं और मैं कुछ नहीं करता हूं. मैं
प्रोडक्ट के बारे में बोलता नहीं हूं और कुछ नहीं करता हूं, सबको कॉफी सर्व कर दिया और मुझे मेरा बैग से एक कॉफी का सैशेट ओपन किया, मैंने डाला, मैं खुद प्रिपेयर किया और मैंने पीने शुरू किया। तो ये क्या होगा जब आप करेंगे, ऐसा करेंगे तो क्या होगा? लोग आपसे पूछेंगे ये प्रोडक्ट क्या है, सही है ना? सो जब लोग आपसे पूछेंगे ये प्रोडक्ट क्या है, आप ऊपर जगह में हो जाते हो इंफॉर्मेशन देने के लिए। जब आप ऊपर जगह में हो जाते हो इंफॉर्मेशन देने के लिए, ये बंदा इंफॉर्मेशन रिसीव कर सकता है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड पुल मार्केटिंग। यू आर पुलिंग पीपल। आप कुछ ऐसे एक्ट करते हो, आप कुछ ऐसे काम करते हो जो लोगों को आक्रोशित करता है आपसे पूछने के लिए ये क्या है। सी फॉर एग्जाम्पल, आप जब मैं फ्लाइट में जाता हूं, सब लोग करते हैं, मेरे बाजू में एक गर्म पानी लेता हूं, गर्म पानी लेके थोड़ा स्पाइरुलिना उसमें ऐड करके पानी को पहले मैं ग्रीन बना देता हूं। जब मैं पानी को ग्रीन बना दिया, सब लोगों का नजर मेरा पानी के ऊपर, ये क्या कर रहा है बंदा, सही ना? बिकॉज मैंने कुछ डिफरेंट कर दिया। मैंने उसे पानी लिया, पूछा, कैप्सूल को मुंह में डाला, वो सोच रहा है मैं मात्रा खा रहा हूं। जब मैंने ओपन करके ग्लास का अंदर डालिया, पानी को ग्रीन बना दिया, देन लोग समझते ये क्या कर रहा है बंदा। लोगों को आकर्षित किया, मुझे पूछने में उनको मजबूर कर दिया, ये क्या कर रहे हो। जब मैं मैरिज में जाता हूं, जब दावत रहता है, बिरयानी खाता हूं, जब बिरयानी खाता हूं, मैंने 2 RGGL कैप्सूल खोला और बिरयानी का ऊपर छिड़क लिया और मैं कुछ नहीं बोला। मेरा पास मेरा दोस्त बैठा है, मेरा पूरा रिलेटिव्स बैठे हैं, मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने सिर्फ बिरयानी के ऊपर RGGL का पाउडर डाला और कभी स्पाइरुलिना का पाउडर डाला और मैं खाने शुरू कर दिया। तो ये जो मेरा एक्शन है ना, ये लोगों को आकर्षित किया पूछने में, तुम क्या कर रहे हो। जब वो पूछना शुरू करेगा, देन वो प्रोडक्ट के बारे में, वो प्रोडक्ट से क्या क्या बेनिफिट मुझे मिल रहा है और वो प्रोडक्ट में क्या क्या बेनिफिट मेरे परिवार को मिल रहा है, ये मैं बोलना शुरू कर दिया। जब मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने का एक मौका चाहिए मुझे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड पुल मार्केटिंग। अभी आपको समझ में आएगा, मैंने पहले बोला था पीपल शुड आस्क अबाउट योर प्रोडक्ट। लोगों को पूछना चाहिए ये प्रोडक्ट के बारे में। ये तब होगा तब ये प्रोडक्ट अब खुला यूज करना शुरू करेंगे। जैसे जैसे शुरू करना यूज करेंगे, ओके। मैंने देखा था बहुत लोगों को जो हमारा नॉर्मल चाय को 2 पानी का बोतल में डाल के शेक करके पीते, जब ये पीते, ये भी एक अट्रैक्शन है। लोग पूछते ये क्या पानी है, इसका अंदर क्या डाला हुआ है। तो हर एक बार जब आप प्रोडक्ट यूज करोगे, जानबूझकर खुले में यूज करना शुरू करो, ओपनली आप यूज करना शुरू करो। ये लोगों को अट्रैक्ट करेगा आपसे पूछने में ये क्या चीज है। जब ये शुरू हो जाएगा, देन यू विल हैव एक अच्छा लीड मिल जाएगा, एक आपको अच्छा एक रास्ता मिल जाएगा ये प्रोडक्ट के बारे में बोलने के लिए। जो स्ट्रेंजर्स है, जो आपसे पहचान नहीं है, उनको भी मिल जाएगा। जब आप किसी का घर में जाते हो, मेहमान बनकर किसी का घर में जाते हो, वो लोग क्या करेंगे, सैलड देंगे, कॉफी देंगे, टी देंगे। आप सिर्फ ये बोलना मुझे 1 गिलास गर्म पानी देना। गर्म पानी के साथ आप शायद कॉफी ऐड कर लो, या स्पाइरुलिना ऐड करो, या RGGL पाउडर ऐड करो। RGGL तो ऐसे ही भी खा सकते हैं, घर में भी खा सकता हूं मैं, बट मैंने जानबूझकर उसका घर में जाके क्यों खाया, इसीलिए खाया। तो वो मुझे पूछेगा आप क्या कर रहे हो। जब वो पूछेगा मुझे आप क्या कर रहे हो, वहां पे मुझे एक लीड मिलता है, वहां पे मुझे एक रास्ता खुलता है ये प्रोडक्ट के बारे में बात करने के लिए, ये प्रोडक्ट का बेनिफिट उसे बोलने के लिए। जब मेरा सेलिंग का जो प्रोबेबिलिटी, जो सेल्स का क्लोज करने का जो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाता है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड पुल मार्केटिंग। तो आप सोचिए किस किस तरह से आप पुल मार्केटिंग कर सकते हो, लोगों को आकर्षित कर सकते हो, आपको पूछने में मजबूर कैसे कर सकते हो, ये क्या है, आप क्या कर रहे हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको बहुत सारे प्रोडक्ट बेचने में आपको मदद करेगा। यस, बहुत खूब रफीक सर। रिटेलिंग के बारे में जो आपने बताया कि हमें अपना जो भी प्रोडक्ट है वो ऐसी जगह पे यूज करना चाहिए जहां पे सब लोग उसको देखें, बस यहीं से आपका काम शुरू हो जाएगा। थैंक यू। Rahul, I would like to request kindly translate. Yes, we had asked this question to Mr. Rafiq, that are tips to retail the product more, and the answer has come very beautifully here. As we said in the earliest answers or question also, push marketing is what you do when you go to a shop and when you buy things. They tell you about some product, buy this,
and you can see in the when you go in the car, when people come and sell you, please buy this product, please. But pull marketing is entirely different. In network marketing, it's 100% pull marketing, and the best way you should do it is do the things in front of the people, in the open. Now, you take any example, when even if you go to anybody's house, you can see, you take the example of a Crown Ambassador, like what Mr. Rafiq said, when he asked a Crown Ambassador, he saw the Crown Ambassador, when he goes to any place, any house, he sees them opening our product and using in front of his guest, making the guest ask the question. When everybody is having a normal tea, he is busy in his own. He just removes his sachets. He just opens his puts in his in the cup and drinks the coffee, and it makes it everybody anxious to know what is it he is drinking, which is very different. Then they will ask. Then you have an opportunity. You have an opportunity to speak, because here the guests are ready to learn. They are open to learn. Now they're asking you the question. So what is it? Mr. Rahul, what is this? So आपके पास you have an answer. You have an opportunity to tell about the product. So coming in the open is very, very, very important. You take the example of anything. You go to have a food. You go to have a dawat, a biryani, and you open our RGGL capsules. You put sprinkle over it. You put our spirulina powder over it, and luckily you have in India in the powder form itself. You can just have the small container and put it over it. Don't even have to open the capsule also. So you have, so this will attract people. This will attract people to ask you, what is that you have added? Then you have so much of things. You have a big Pitara box with you to tell about the product, the benefit of the product. So ultimately, it is you attracting everybody, including the stranger. Whether you go to a guest house, whether you are traveling, whether you are going in a flight, anywhere, when you do these activities in the open, this will attract. And this is not selling, this is marketing, my dear friends. Very beautifully said, Mr. Rafiq. Thank you very, very much for this beautiful answer. So here we go to our, just two more questions left, Mr. Rafiq. Yeah, Rahul. Yes. Rahul. जैसे कि अभी रफीक सर ने टिप्स बताया कि किस तरीके से हमें ओपन में प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, राइट? अब यहाँ पे या तक हम बात कर रहे हैं रिटेलिंग, कुछ लोग कहते हैं कि हमें कितना बेचना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तो इस तरीके के भी प्रश्न आते हैं. तो क्यों ना सवाल हमारा भी कुछ इसी तरीके से हो, राहुल? Yes, Vijay, as you rightly said. People often ask us this question, Mr. Rafiq. How much retailing should I make? They keep on asking us because they think there's a benchmark, there's a deadline for this. So they ask us this question: how much retailing should I make? ये प्रश्न यही है कि सेलिंग की बात हम कर रहे हैं, तो हमें जो नॉन डिस्ट्रीब्यूटर को कितने का प्रोडक्ट और कितना प्रोडक्ट हर महीने बेचना पड़ेगा और कितना ज्यादा बेचना पड़ेगा, क्या हमेशा बेचते रहना पड़ेगा या इसका कोई लिमिट है या नहीं है, तो इसके बारे में सर हमारे दर्शकों को आप बताएं. कितना बेचना पड़ेगा. So ये जो मैंने बोला था, मैं पहले शुरुआत से ही एक बात बोल रहा हूं. Our main role is you are a distributor. सही है ना? जब आपने एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी आपने ले लिया, से फॉर एग्जांपल एक 20 कंट्री में एक जो कंपनी है, अगर उसका डिस्ट्रीब्यूटर का पावर आप लेना चाहते हो आपका घर में और आपका मोहल्ले में, तो आपको कितना पैसा वहां पे देना पड़ेगा. ओके, से फॉर एग्जांपल एशियन पेंट, अगर एशियन पेंट का डिस्ट्रीब्यूटर आप लेना चाहते हो, आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा सोचो. एशियन पेंट करीबन अराउंड 7-8 कंट्री में है, बट डीएक्सन जो है 80 कंट्री में है. इसका डिस्ट्रीब्यूटर आपको फ्री में मिल गया, नंबर 1. नंबर 2, जब आप एशियन पेंट का डिस्ट्रीब्यूटर ले लेंगे तो वो एशियन पेंट वाला कभी भी ये नहीं पूछेगा मैं कितने प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करूं. सही है ना? तो ये पूछेगा मैं कितने ज्यादा प्रोडक्ट वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा उतना प्रॉफिट है. तो ऐसे ही जब आप डीएक्सन डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हो, डोंट सी आप कितना, आपका पीवी कितना हुआ, 1000 हो गया, 3000 हो गया, तो आप पीवी को देखने लगेंगे तो आपका माइंड एक सेटिस्फैक्शन आ जाएगा, नहीं मैंने जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसने मैंने कर दिया.
और आप ज्यादा नहीं करोगे। तो इसीलिए कभी भी आप जब रिटेलिंग करते हो, जब भी आप प्रोडक्ट को सेल करते हो, डोंट सी योर पीवी। एवरी मंथ नया नया डिस्ट्रीब्यूटर आप ऐड करते रहो, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज जब ऐड करते रहेंगे तो क्या होगा, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर इन फ्यूचर में मेंबर बन जाएगा, वो एक हो सकता है। और सेकंड जो है, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर कुछ दिन खरीदेगा, कुछ दिन नहीं खरीदेगा, वो भी हो सकता है। तो अगर आपका पर्सनल पीवी तगड़ा होना चाहिए, अगर आपका पर्सनल पीवी अच्छा होना चाहिए, ये ऐसी करना चाहिए आपको, हर महीना कुछ ना कुछ कंज्यूमर आता ही रहना है। जब भी नया प्रोडक्ट आता है मार्केट में, वो प्रोडक्ट का नया कंज्यूमर आना चाहिए। बिकॉज मैं देखता हूं, जब हमारा पास 10 प्रोडक्ट था तब भी बंदे 3000 पीवी करते हैं। जब अभी हमारे पास 50 प्रोडक्ट है फिर भी लोग 3000 पीवी करते हैं। तो नया प्रोडक्ट आने में फायदा नहीं होगा ना। तो इसीलिए जब भी नया प्रोडक्ट आएगा, हम ज्यादा कंज्यूमर को हमारा बिजनेस में हमारा मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ये हमारा पर्सनल पीवी को बहुत अच्छा कर देगा। जब मेरा पूरा नेटवर्क, जब उसका पर्सनल पीवी तगड़ा हो जाता है, देन सिर्फ आपका 100-200 लोग में आप लाखों से कमा सकते हो। तो इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन करने में, पर्सनल पीवी करने में कोई लिमिटेशन नहीं है और कोई लिमिटेशन रखना भी नहीं चाहिए। मैं यही बोल रहा हूं, आपका पर्सनल पीवी 3000 हुआ, 1000 हुआ, ये कभी भी मत देखना। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आप रिटेलिंग करते ही रहना। आपसे कितना हो सके उतना करो ना। ऐसे नहीं है मैं आपको 20,000 या 1 लाख करने के लिए बता रहा हूं। जितना हो सके उतना आप रिटेलिंग करते रहो। जितना रिटेलिंग आप ज्यादा करोगे, आप नंबर 1 सेल्स पर्सन बन जाओगे। लोगों को मनाने का तरीका आपसे आएगा, लोगों को कन्विंस करने का, नेगोशिएट करने का कला आपको मिलेगा। और ये जो कला है, आप आपका पूरा टीम को सिखा सकते हो। सही है ना। तो इसीलिए सेलिंग है लाइक यू आर, जो हमारा ब्लेड रहता है ना, जो चाकू रहता है, ये चाकू को हम वैसे ही रख देंगे तो क्या होगा, वो ब्लंट हो जाएगा, नहीं काटेगा। तो उसे तेज करता ही रहना चाहिए, तेज करना ही चाहिए। तो हर महीना जब आप प्रोडक्ट बेचते ही रहेंगे, ज्यादा लोगों को लेकर आएंगे, जो आपका जो दिमाग है वो भी तेज होता ही रहेगा। 3000 पीवी में खर्च जाएंगे तो दिमाग सड़ जाएगा। तो इसीलिए दिमाग को तेज करते ही रहना चाहिए। तो इसीलिए हर महीना कुछ ना कुछ नया कंज्यूमर आपका टीम में आना चाहिए। ये कोशिश करना, मैं नहीं बोल रहा हूं आपको 100% इतना ही ले आना चाहिए, बट कोशिश करिए जितना ज्यादा हो सके उतना कंज्यूमर आपका साथ होने के लिए। तो क्या होगा, ये कंज्यूमर फ्यूचर में डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा। जब वो डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा, वो ताकतदार डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा। तो इसीलिए इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। डोंट सी योर पीवी, यू ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन मोर एंड मोर रिटेलिंग। यस, बहुत बहुत रफीक सर, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आपको ज्यादा इनकम कमानी है तो जितना ज्यादा सामान बिकेगा, जितना ज्यादा सामान आप बेचेंगे, उतना ही आपका बोनस और आपका इनकम बढ़ेगा, आपका कमीशन बढ़ेगा। तो अब ज्यादा इनकम चाहिए आपको, जितनी ज्यादा इनकम चाहिए उतने ही ज्यादा आपके पास नए लोग होने चाहिए, नए कंज्यूमर होने चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात सर मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि आपने बोला कि नए प्रोडक्ट्स के साथ नए कंज्यूमर जुड़ने चाहिए। ये नहीं कि एग्जिस्टिंग कंज्यूमर के अंदर ही आप निकाल रहे हैं। जैसे खेती का भी नियम है ना, खेत के अंदर भी हम पलटा मारते हैं। एक फसल इस बार उगाई तो दूसरी फसल हम दूसरी उगाते हैं उसके अंदर, जिससे कि उसकी उर्वरकता बनी रहे। तो इसीलिए हमें नए कंज्यूमर भी बनाने बहुत जरूरी हैं। राहुल, आई कैन ट्रांसलेट इन इंग्लिश। Yes, we had asked a question to Mr. Rafiq, how much retailing should I make? So beautiful answer by Mr. Rafiq is, don't forget your main role. That is, your main role is a distributor. What we have been saying from the very beginning, even not only in this session, even from the very beginning. Now, take an example of Asian Paints or any other company. Now, if you want to expand that into 20 countries, think about the investment, your time, everything. Now, if we talk about DXN, we are present in more than 80 countries, and in 80 countries, you are free to do distribution. Now, when you are telling about you are free to do distribution, the first thing is, do not see your point value, your PV. Do not go with the minimum requirement. You keep it open. You always try and understand that adding new distributor is very, very important. And when it comes to adding new distributor,
Also understand that adding new consumers to all the products is very, very important. What happens is we tell that you maintain 3,000 personal PP or 3,500 personal PP. You have the same people again changing the brands and again maintain this only the 3,500 PP. What you should do is, if when a new product is being launched, you find new set of people for that products. And when you start finding the new people for that set of products, your PV keeps on increasing. It can become 3,500, it can become 5,000, it can become 10,000, it can become 1 lakh also. So keep ready your people. That is very important. Keep your people, new people for all those consumers. And in DXN, we have got this beautiful set of products which can be consumed by various people, various sets of people. So always a beautiful message from Mr. Rafiq, which I want to quote again. Always sharpen your mind. Always sharpen your brain. That is very, very important. If you keep it idle, like how you keep your knife, it can get rusted. So do not make your brain rusted. Do not make your mind rusted. Keep on sharpening. Keep on finding these ways to increase your PVs. And this will in turn help you automatically to make the bonus more. Very beautiful said, Mr. Rafi. Thank you very much for the beautiful answer. रफीक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आपके इस बेहतरीन सभी सवालों के जवाब आपने बहुत ही बाखूबी दिए, और मैं उम्मीद करता हूं जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं आज उनके जो मन में जो विचार होंगे उससे उनको बहुत फायदा मिला होगा, उनको सोल्यूशन मिला होगा, उसका उत्तर उन्हें मिल गया होगा. आगे भी हम ऐसा प्रयास करते रहेंगे. तो सर, हम बढ़ते हैं आज के अपने इस प्रोग्राम के अंतिम पड़ाव की तरफ. क्यों राहुल? क्योंकि ऑलरेडी समय भी बहुत हो चुका है, लोगों को भूख भी लगनी शुरू हो गई, लंच का टाइम भी है होने वाला लोगों का. तो क्यों ना रफीक सर से हम एक रिक्वेस्ट करें. तो राहुल, here's your, that is in English, then I will translate in Hindi. Yes. No, the last is not a question. It's not a question at all. Yeah, maybe. Yeah, it's not a question. Mr. Rafiq, what a take-home message for all our distributors. वाओ. सो रफीक साहब से अनुरोध है कि चलते चलते हमारे सभी डिस्ट्रीब्यूटर दर्शकों को एक अपना संदेश दें जिससे कि उनके व्यवसाय में, उनके जीवन में कामयाबी और खुशियां मिल सके. ओके, यू सी द टेक होम मैसेज फॉर टुडे सेशन. आज का जो सेशन का जो घर ले जाना और आपका अंदर रखना और इसमें काम करने का जो मैसेज है, वेरी सिंपल है. DXN बिजनेस जब डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होता है, स्टार एजेंट, क्राउन एम्बेसडर तक जाता है, सिर्फ 3 स्टेप में ही है. ये 3 स्टेप याद रखना, और कुछ नहीं है. अब क्राउन एम्बेसडर आज 80 लाख 90 लाख कमा रहे हैं, उनका साथ भी 3 स्टेप है. आज 1 लाख कमा रहे हैं, उन्होंने भी ये 3 स्टेप ही अपनाया. सो आप कमाना चाहते हो, सिर्फ ये 3 स्टेप ही अपनाओ और ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है. नंबर 1 है अच्छा कंज्यूमर. जितना प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हो उतना प्रोडक्ट यूज करो. कितना प्रोडक्ट यूज करने का ताकत रखते हो उतना प्रोडक्ट यूज करो. पहला चीज, सही है ना. सेकंड चीज है क्रिएट कंज्यूमर. ये जो क्रिएटिंग कंज्यूमर विल मेक यू एज ए डिस्ट्रीब्यूटर. ये स्टेप कभी भी स्किप नहीं करना. लोग मैंने देखा था जब कंज्यूमर बन गया, मेंबर बनने का बाद इमीडिएटली स्पॉन्सरिंग करने चला गया, तो नेटवर्किंग में ध्यान हो गया. तो यहां पे क्या मिस हुआ, डिस्ट्रीब्यूटर का काम मिस हो गया है. तो ये डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, नॉन मेंबर को प्रोडक्ट बेचना शुरू करोगे, देन यू विल हैव कंज्यूमर. तो क्या होगा इन फ्यूचर, ये कंज्यूमर विल बिकम ये डिस्ट्रीब्यूटर अंडर यू, यू बिकम नेटवर्कर. ठीक ना. जब मेरा कंज्यूमर हर महीना टूथपेस्ट लेता था, वो भी सोचता था सर मैं भी आपका जैसा बिजनेस करना चाहता हूं. देन मैं उसे मेंबर बना दूंगा, तो क्या होगा, वो मेरा नीचे और एक डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएगा. आप स्पॉन्सर किसे करना है, कंज्यूमर को स्पॉन्सर मत करो, डिस्ट्रीब्यूटर को स्पॉन्सर करो. कंज्यूमर को सिर्फ आपका साथ रखो, आपका पर्सनल पीवी करने में, मदद करने में, बट डिस्ट्रीब्यूटर को स्पॉन्सर करो. जब ये कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएगा, ये एक बहुत बड़ा फायदा. बिकॉज जब कंज्यूमर है ना, इसे पीवी में कोई लेना देना नहीं है, बोनस आता है नहीं आता है कोई लेना देना नहीं है. कंज्यूमर सिर्फ प्रोडक्ट की ताकत की वजह से कंज्यूम करता है. जब ये कंज्यूमर जब डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएगा, इसका पीवी कभी भी 0 नहीं होगा.
क्योंकि वो ऑलरेडी अच्छा कंज्यूमर है, तो इसीलिए वो कंज्यूम करता ही रहेगा। उसका पीवी होगा फिर भी कंज्यूम करेगा, पीवी नहीं होगा फिर भी कंज्यूम करेगा, बिकॉज ये अच्छा कंज्यूमर बनकर डिस्ट्रीब्यूटर बना। तो एक अच्छा कंज्यूमर को डिस्ट्रीब्यूटर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 चीज है, नंबर 1 अच्छा कंज्यूमर बनो, सेकेंड चीज कंज्यूमर क्रिएट करो, और डिस्ट्रीब्यूटर को स्पॉन्सर करो। अगर ये 3 चीज हो जाएगा, यू विल बिकम क्राउन एम्बेसडर। 2 साल में आपको गारंटी दे सकता हूं, मिनिमम आप 1 लाख से ऊपर डीएक्सन में कमा सकते हो। सिर्फ ये 3 चीज को याद रखो। अभी आपको प्रोडक्ट को बेचने में कितना प्रोडक्ट आ गया डीएक्सन का साथ। पहले ऐसा जमाना था सिर्फ आरजीजीएल स्पाइरुलिना था, जो भी प्रोडक्ट को चुएंगे 1000 का ज्यादा का मोल रहता था। बट आज 100 से कम से भी प्रोडक्ट आपको डीएक्सन में 4-5 प्रोडक्ट है, 200 में 300 में हर दिन यूज करने का प्रोडक्ट आपका पास है। तो आपको डिस्ट्रीब्यूट करने में कोई भी झिझक नहीं होना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जो हमारा टूथपेस्ट ये 1 महीने से नहीं था, ये टूथपेस्ट ये महीना सब स्टॉक पॉइंट में, सब ब्रांच में चला जाएगा। ऑलरेडी कुछ ब्रांच में चला गया है, ऑलरेडी हमारा प्रोडक्शन पूरा दम में शुरू हो चुका है। बेहतरीन टूथपेस्ट हमने ये बार आपको डिलीवरी देने वाले हैं। तो आपको टूथपेस्ट भी मिलने वाला है, हर एक प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो आप सिर्फ 3 बात याद रखो, ये रखकर आपका घर में चिपका दो। ये 3 कुछ चीज हर बार देखना है, अच्छा कंज्यूमर, अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर और अच्छा नेटवर्कर। ये 3 स्टेप, दिस इज द टेक होम मैसेज। Thank you. Very Thank good, you. sir. Well said. Rahul, please translate in English. Yes, sir. See, very well said. It is very crisp manner by Mr. Rafiq. There's only 3 steps. Now, whether it is from a star agent, right, from star agent till the optimum position of a crown ambassador, where we have seen people earning with 80 lakhs, 90 lakhs, they have done only these 3 steps. And that is the beautiful 3 steps which you should all be doing. The first is be a good consumer. And while being a good consumer, you can use all the products, or you can use those products which you have the capacity. If you have the capacity to use all the products or which you like, that is the first part, be a good consumer. And when you feel after consuming the benefit of the product, create more consumers by sharing the benefit. And when you do so, you become the third part, that is a distributor, you become a networker. So only 3 things which you need to do. First consume, then create consumers, and then you create distributors and they become networkers. So beautifully said. Consumers and products is our strength in DXN, and we have many products now. It's not like earlier where you have high price prices. Now we have low entry level products in your house, below 1,000 rupees also, below 1,000 rupees, below 100 also. And these products are really going to change your future. And please utilize all these new products, whatever we're coming with, these entry level products. 3 years is sufficient for you to make a career in DXN, for you to make an income of for 2 to 3 lakhs easily. But you need to do these basic things. That is very important. Do not forget the basic things what we do, tell them. So toothpaste is also being made, will be made available. The good quality toothpaste will be made available in this month. So do not worry about the products. Everything is been done properly, systematically by us. So that was beautifully said again by Mr. Rafiq. Thank you very much, Mr. Rafiq. I believe in this session, each participant has got an answer, even if somebody who has forgotten that this was to be done. This is again a re-polishing for all of them. Oh, they'll say, oh, Purana, I knew this earlier, but good. Thanks for remembering me, reminding me these things. So it is again for everybody, not only for the distributors, to everybody, including the leaders. This simple process is what we asked today. This is the real thing, all about retailing. So, Mr. Rafiq, thank you very much, Mr. Vijay. A closing session. राहुल, इससे पहले कि हम आज सेशन को वाइंड अप करें, तो 22 तारीख को ठीक 2 बजे हमारा एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम होने वाला है। फर्स्ट डे QSD क्वालिफायर का फेलिसिटेशन, जिसे बहुत बेहतरीन लकी ड्रॉ है, और जिन्होंने पहले दिन 3500 पीवी किए हैं वो भी लकी ड्रॉ में शामिल हो सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से। तो एक बेहतरीन प्रोग्राम होने वाला है 22 तारीख को। तो स्टे ट्यून्ड, कहीं जाइएगा नहीं, बस 2 बजे से पहले सारे काम निपटा के पूरे रिश्तेदारों के साथ उस प्रोग्राम को आपको अटेंड करना है, कि क्या पता वो लकी विनर आप ही हों। तो तैयार रहिए दोस्तों, कहीं जाइएगा नहीं।
Yes. और इसी 22nd शब्दों is के again our साथ special. 22nd is again a very big celebration. Like we have been doing this past 2 months, and this month again a big celebration. So do not miss the opportunity, because only when you are physically present, you get that prizes. So do not forget to share with everybody. Let's everybody join and make that a celebration. Prizes is not a matter, but the excitement that matters. That excitement what you create with all the people, that matters. So once again, Mr. Rafiq, thank you very much. रफीक सर, थैंक यू वेरी मच। और साथ साथ मैं अपने सभी दर्शकों को आने वाले गुरु पर्व की बधाई देना चाहूँ। लख लख बधाइयाँ हों जी। गुरु पर्व आने वाला है, तो आप सभी लोग गुरु पर्व में अपनी खुशियों को प्राप्त करें, जो जैसे जिनको मानते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ फिर मिलेंगे कल ठीक 12 बजे एक नए स्पीकर के साथ, एक नए विचार के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नई उमंग के साथ। तब तक सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और बेचते रहिए, रुकिएगा नहीं। थैंक यू। Thank you very much. थैंक यू। Okay, bye bye. Thank you. Thank you.